Hello students, so how are you all? Hope your preparations are in full swing. So today I have brought for you the quiz that is based on the chapter From the Diary of Anne Frank from your book The First Flight. The questions are based on theme, title and some of understanding based questions are there and some questions that are related to tone also. So let's quickly start our quiz. But before that, I would like to request you, if you are new at my channel, please subscribe my channel for having these types of literature plus specially grammar quizzes on the daily basis. So let's get started. From the Diary of Anne Frank has been penned by Nelson Mandela, Anne Frank or E.B. Esther. So obviously Anne Frank is the author of the Diary of Anne Frank. From the Diary of Anne Frank is an excerpt from the Diary of Anne Frank, year-old girl, the personal diary of a 12-year-old girl, or the personal diary of a 13-year-old girl. So as we know that it is an excerpt from the diary of a 13-year-old girl. Anne Frank was a Polish girl, Jewish girl, or German girl. So she was a Jewish girl who was who was born in born in Germany. Means she was a German born Jewish girl. इस बात का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो हमको क्या ध्यान रखना है कि she was a German born Jewish girl. German born Jewish girl. The name she gave to her diary was Mary Kitty Sweetie. So obviously she gave the name Kitty to her diary. Anne Frank witnessed the horror of Nazi rule at the time of World War I, Nazi rule at the time of World War II, or apartheid policy in South Africa. So it was World War II when Nazi rule was going on. So she has actually witnessed the horror of Nazi rule at the time of World War II. Anne Frank was a German-born Jewish girl, American-born Polish girl, German-born American girl. So we have already discussed about this. She was a German-born Jewish girl. The title of the chapter is appropriate as it is dashed by Anne Frank. It is an excerpt from a diary showing some historical records written by Anne Frank, or an excerpt from a novel teaching the art of writing a novel, or an excerpt from a poetry collection showing the collection of different poets. So as we know that this diary is an excerpt of a diary showing some historical records also. Okay, ये डायरी एक्चुअली फेमस क्यों हुई थी स्पेशली क्योंकि इसमें अननोइंगली एंड फ्रैंक ने, क्योंकि वो सिर्फ जो अपना एक्सपीरियंस कर रही थी अपने आसपास की जो भी माहौल में सराउंडिंग में चल रहा था वो उसको नोट डाउन कर रही थी। हालांकि वो डेलिबरेटली वो ऐसा नहीं कर रही थी, जानबूझ करके किसी भी तरीके की कोई रिकॉर्डिंग नहीं रखना चाह रही थी कि हिस्टोरिकल, लेकिन वो जो कुछ भी वो अपनी पर्सनल लाइफ में जो कुछ चल रहा था वो उसमें रिकॉर्ड में मिस लिखती जा रही थी। ठीक है, और उसको खुद नहीं पता था कि उसकी ये जो डायरी है वो इस तरीके से आने वाले टाइम में इतनी फेमस हो जाएगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ही ऐसा हुआ कि वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी और उसमें कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिकली हिस्टोरिकल इवेंट्स शेयर हो गए कि वो आगे आने वाली जो जनरेशन थी उसके बहुत काम में आए, काफी इंफॉर्मेशन मिली उस डायरी से। एन फ्रैंक was a victim of apartheid, Holocaust, or own negative thoughts. So obviously we know that she was the victim of Holocaust जो कि कंटिन्यू जो मिलियंस में जो जूस जो हैं
उनका क्या करना चाहिए, मैसेकर हुआ था, नरसंहार हुआ था, ठीक है ना। हालांकि होलोकॉस्ट जो टर्म है वो दूसरे वे में भी यूज होता है, ठीक है। जर्मन जूश में मीन्स जो जू लोग होते हैं उनमें भी, जैसे कि हमारे इंडियन कल्चर है ना, उनमें पहले के टाइम में एक सती प्रथा हुआ करती थी, तो इसी टाइप की एक प्रथा इन लोगों में भी हुआ करती थी, ठीक है। तो बिल्कुल सेम होती थी, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस जो भी होता था, लेकिन यहाँ पर होलोकॉस्ट का दूसरा मीनिंग है, मतलब दो मीनिंग होते हैं होलोकॉस्ट के, तो ध्यान रखिएगा आप इसको, ठीक है। तो होलोकॉस्ट इसके लिए भी फेमस है, ठीक है। ये एक टाइम में, बहुत पहले के टाइम में जूइश जो थे उन लोगों में कोई सिस्टम था, ठीक है। वो बिल्कुल इस तरीके का था, सती प्रथा की तरीके था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि ये दूसरा टर्म है, यहाँ पर क्या, जो नाजी रूल जो चल रहा था, तो जर्मन जो लोग थे उन्होंने क्या मिलियंस में काफी जूइश लोगों को मार दिया था, है ना। तो उस सेंस में ये वर्ड यूज हो उस सेंस में इस वर्ड का यूज होता है, होलोकॉस्ट। The reason prompted her to write a diary was to write something, as the diary was gifted to her as to pen down the records of Holocaust, open her heart as she was not having a true friend. तो उसने क्या, ये जो हॉलोकॉस्ट का जो भी रिकॉर्ड था वो जानबूझ करके नहीं रखा था, ये तो अननोइंगली हो गया था। एक्चुअली क्या मकसद था उसकी डायरी लिखने का, she wanted to open her heart because she was not having a true friend. She wrote the diary while hiding in a store, on the terrace, at an attic. ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, at an attic with her family. She was hiding herself at an attic with her family when she used to write diary. The diary of Anne Frank shows an insight into the thoughts of a young girl, or time wasted by a young girl in writing a diary, or an insight of the first-hand experience of a Jew during Nazi rules, or creativity of a young girl. जो यहाँ पर जो एन फ्रैंक की जो डायरी है वो हमें क्या क्या शो करती है कि एक यंग गर्ल जो होती है, यानी कि इस उम्र से गुजरने वाले जो बच्चे होते हैं, उनको उनकी जो थॉट्स होती है वो कितनी डीप होती है, तो उसको देखने का हमें मौका मिलता है इस डायरी से। सेकेंड, वेस्टेड टाइम, तो ये तो रॉन्ग है ऑप्शन। एन इंसाइट ऑफ द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ अ ज्यू, यानी एक तरह से वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, वो एक ज्यू गर्ल थी, ठीक है। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसका जो एक्सपीरियंस है वो आगे जाकर के लोगों के लिए इतना काम आएगा कि लोगों को एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जानने को मिलेगा कि क्या उस समय की कंडीशन क्या थी, ज्यू लोग जो थे वो किस तरीके की कंडीशन से गुजर रहे थे, ठीक है। तो उसके थ्रू, क्योंकि वो भी ज्यू थी और वो सब कुछ सफर कर रही थी, वो सब सफर कर रही थी जो बाकी के ज्यू लोग वहां पर सफर कर रहे थे, ठीक है। तो ये अपने आप में एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बन गया ज्यूज का ड्यूरिंग नाजी रूल। थर्ड, यस, फोर्थ, क्रिएटिविटी ऑफ यंग गर्ल, यस ऑफ कोर्स यहाँ पर क्रिएटिविटी भी शो की गई है कि वो किस तरीके से डायरी की स्टार्टिंग कर रही है। जब वो बोल रही है कि जो लोग कॉमनली लोग डायरी लिखना शुरू करते हैं, तो मैं उस बोरिंग तरीके से मैं डायरी नहीं लिखना चाहती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। She wrote the diary while hiding. The same question again. Sorry. The theme from the diary of Anne Frank deals with an honest expression of a teenager, a record of sweet relationship shared by teachers and students, the anxiety of students before result, irritation caused to the teacher by the talkative students, a common problem of the word, then opinion of a student about a school life, और all above। तो आपको ये सारे रीडिंग करने से समझ में आ ही गया होगा कि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं कि थीम देखिए, एग्जैक्टली डायरेक्टली थीम नहीं पूछेंगे, बट वो घुमा फिरा करके इस तरीके से वो पूछ सकते हैं, है ना, क्वेश्चन को। तो ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स माइंड में रखिए कि वो ऑनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अ टीनेजर, ठीक है, वो
बिना कुछ सोचे जो भी एग्जैक्टली उसके मन में चल रहा है वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है, मीन्स सब कुछ लिख रही है डायरी में, ठीक है। तो एक टीनेजर का क्या मानसिक स्थिति होती है उस टाइम में वो हमें क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रिकॉर्ड ऑफ अ स्वीट रिलेशनशिप शेयर बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वहां पर सब कुछ इसे बता रही है कि वो किस तरीके से उसका टीचर्स के साथ बिहेवियर होता था और किस तरीके से टीचर्स पढ़ाते थे, सब कुछ वहां पर शो हो रहा है डायरी के थ्रू। द एंजाइटी ऑफ स्टूडेंट बिफोर रिजल्ट, जब वो पर्सनल रिकॉर्ड शेयर कर रही है कि रिजल्ट वाले दिन हम लोगों की क्या कंडीशन थी, है ना। तो यहाँ पर वो भी शो हो रहा है। इरिटेशन कॉज्ड टू द टीचर बाय द टॉकेटिव स्टूडेंट, अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, ये भी बेसिक थीम है। एंड ओपिनियन ऑफ अ स्टूडेंट अबाउट द स्कूल लाइफ, ठीक है। तो ये सारी थीम्स है इस चैप्टर की। The extract gives a message that writing a diary always makes you creative. मैसेज भी है, इसीलिए आप रख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के रिवीजन के लिए लास्ट टाइम पर। The extract gives a message that writing a diary always makes you creative. It lessens your burden of heart. You are never afraid of your secrets to be opened, as paper has more patience than man. एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू एंजॉय फ्रीडम। जो उनके साथ कंडीशन चल रही थी तो उसको देखते हुए यहाँ से इस स्टोरी से हमें ये भी मैसेज मिलता है कि हर एक इंडिविजुअल का राइट है फ्रीडम को एंजॉय करने का। टीचर्स शुड डिसिप्लिन देयर स्टूडेंट्स बट हेल्प देम टू रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी, ठीक है। तो टीचर्स का काम होता है डिसिप्लिन में रखना स्टूडेंट्स का, लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना होता है कि एक जो स्टूडेंट है उसकी अपनी भी एक इंडिविजुअलिटी है, ठीक है। उनका भी अपना एक रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनकी क्रिएटिविटी है ना। तो उसको खोने नहीं देना है, उनको कंटिन्यू करना है। The teachers must be creative enough to punish their students, gifting them a lifelong reward rather than inflicting lifelong pain in them, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिस्टर कीजिंग है वो जिस तरीके से उसको होमवर्क दे रहे हैं, क्रिएटिव होमवर्क दे रहे हैं, तो उसके थ्रू ये देखने को क्लियरली मिलता है कि मिस्टर कीजिंग जो है वो कितने स्मार्ट टीचर हैं कि वो अपने स्टूडेंट को इस तरीके का कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं कि बाद में जाकर के उसको प्रॉब्लम करे, बल्कि उस पनिशमेंट में भी उसको एक गिफ्ट दे रहे हैं कि इनडायरेक्ट वे में वो उसकी अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको क्या है, उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस हैं इस स्टोरी के। I have an even greater need to get all of things off my chest. She feels a greater need to write a diary because she loves to write. She wishes to feel lighted. She has got it in her homework. तो एक्चुअली में डायरी क्यों लिखना चाहती थी, वो इसलिए लिखना चाहती थी क्योंकि वो अपने उसके मन में जो भी भार था, उसके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, तो इसी वजह से वो डायरी लिखना शुरू करती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। द राइटर मेक्स दिस स्टेटमेंट बिकॉज स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आप पहले अपने आप को खुद चेक कर सकते हैं, फिर मेरे जो एक्सप्लेनेशन सब सुन सकते हैं। पेपर्स हियर एवरीथिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट, without arguments. Paper cannot be torn. Papers can't disclose the secrets to anyone. Papers can respond patiently. So, what should be the meaning of this line? Paper has more patience than people. Paper, papers hear everything without argument. This is true because paper is an इज ए लाइफलेस थिंग। तो हम नेचुरल सी बात है वो आर्ग्यूमेंट तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। कैन बी टॉन, नो दिस इज नॉट ट्रू। पेपर मीन्स ट्रू, टॉन तो किया जा सकता है, फाड़ तो जा सकता है, लेकिन इसका यहाँ इस लाइन से कोई कनेक्शन नहीं है। पेपर्स कैन डिस्क्लोज द सीक्रेट्स टू एनीवन। पेपर जो है वो किसी को भी सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। या फिर पेपर्स कैन रिस्पॉन्स पेशेंटली, वो बहुत पेशेंटली रिस्पॉन्स करते, तो ये भी रॉन्ग है। 3 and 1, 1 and 3 is the correct answer. That means option number B is correct. 16 second.
Paper has more patience than people. The argument may fit best for the given expression. Papers कैन नॉट बी रीड बाय एवरीवन मीन्स आर्ग्यूमेंट, यानी क्वेश्चन जो है वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे एन फ्रेंड बोल रही है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। इसका मीनिंग मतलब ये भी है कि पेपर जो है यानी कि जब हम डायरी में कुछ भी हम लिख रहे हैं तो अपने आप में एक तरह से सेफ है, क्योंकि वो लोगों की तरह हमारी बात को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाएंगे। तो इस बात को लेकर अगर कोई आर्ग्यूमेंट करता है कि ये जो लाइन है वो बिल्कुल सही नहीं है, तो उस सेंस में कौन सी लाइन जो है इन तीनों में फिट बैठती है। पेपर कैन नॉट बी रीड बाय एनीवन, तो रीड तो किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। पेपर अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, पेपर अंडरस्टैंड द फीलिंग, नो those are lifeless objects, so how can they understand our feelings? Or feeling written on papers can be read stealthily, but hearts cannot be disclosed so easily. So this option will be correct. Feelings written on the paper can be read stealthily. Stealthily means क्या होता है? हाइडिंगली, चोरी छुपे। यानी कि पेपर पर कोई भी फीलिंग किसी ने कुछ लिखी है तो कोई भी उसे चोरी चोरी पढ़ सकता है अगर उसके यहाँ डायरी मिल गई थी, ठीक है। लेकिन अगर हम अपनी बात को किसी अपने बहुत ही गहरे दोस्त से शेयर करते हैं तो उससे उसके मुंह से उस बात को निकलवाना उतना आसान नहीं होता है, जबकि पेपर पे लिखी हुई बात कहीं पर भी पास हो सकती है, ठीक है। पेपर्स आर नॉट प्रोटेक्टिव एवरी टाइम, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये भी लाइन यहाँ पर फिट नहीं बैठती है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Who are we in the extract? The author, her family, and her teachers? No. The author, her family, and her friends? The author, her family, and German rulers. So option number B is correct. We don't seem to be able to get closer. That is the problem. जब वो बोल रही है ना कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, इतने सारे फ्रेंड्स हैं, उसके बावजूद भी मैं बिल्कुल लोनली हूँ, ये कोई बिलीव नहीं करेगा। तो यहाँ पर वी कौन है? दी ऑथर, यानी कि खुद एन फ्रैंक, उनकी फैमिली और उनके फ्रेंड्स की बात हो रही है यहाँ पर। We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. The line tells that the author was ill-tempered, introvert, arrogant. इस लाइन को पढ़ने से आपको क्या लगता है कि जब वो बोल रही है कि हम मेरी इतनी बड़ी फैमिली होने के बाद भी, इतने सारे फ्रेंड्स होने के बाद भी मैं अपने आप को अकेला पाती हूँ, तो इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि शी वॉज इंट्रोवर्ट, है ना। वो रिजर्व नेचर की थी, वो इंट्रोवर्ट थी, किसी से इतने जल्दी घुलती मिलती नहीं थी। Select the most appropriate answer for 1 and 2. Now I am back to the point. I am prompted to the diary as I don't have any friend. First is true, second is false. Second furthers the meaning of 1. 1 and 2 both are false. Both are true. So yes, of course both are true. But यहीं पर बात खत्म नहीं होती। सेकेंड फर्दर्स द मीनिंग ऑफ 1। जो सेकेंड पॉइंट है, आई एम प्रॉम्प्टेड टू द डायरी एज आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट। जब वो बोल रही है ना, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं वापस अपनी उसी बात पर आती हूँ। इस बात पर आती हूँ कि आई एम प्रॉम्प्टेड टू द डायरी एज आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। तो सेकेंड जो सेकंड लाइन है वो इस लाइन को आगे बढ़ा रही है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट आई एम प्रॉम्प्टेड टू द डायरी एज आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेट मी पुट हर more clearly since no one will believe. The tone of the writer in this line is confident, hesitant, submissive, dismissive. Let me put her more clearly since no one will believe. Let me put here more clearly. तो यहाँ पर जब वो बता रही हैं कि मैं अब क्लियरली बताती हूँ कि एक्चुअली मैं डायरी क्यों लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर
लाइन जो है उस वो क्या है, बहुत ही वो कॉन्फिडेंस से बोल रही है ना, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है अपनी बात को कहने के लिए, तो हेजिटेंट तो बिल्कुल नहीं है ना, कॉन्फिडेंट है। सबमिसिव नहीं है, डिसमिसिव नहीं है। सबमिसिव क्या होता है, सबमिसिव शांति से किसी की बात को मान लेना होता है, किसी की बात के आगे झुक जाना, या किसी की बात को शांति से मान लेना, या फिर बहुत कामली किसी को रिस्पॉन्स करना। ठीक है, बिल्कुल जैसे वांडा करती थी। तो सबमिसिव कौन थी, वांडा, है ना। डिसमिसिव, डिसमिसिव कैसे कि डिसमिसिव सबमिसिव का जस्ट अपोजिट होता है। डिसमिसिव का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे कि कोई भी आर्ग्यूमेंट है या कोई भी बात कही जा रही है, जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, जब आप उसकी आर्ग्यूमेंट को नहीं मानना चाहते हो कि जो सामने वाला जो सोच रहा है वो ऐसा ही होगा या ऐसा ही होना चाहिए, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे डिसमिसिव। ठीक है, इसके और भी और काफी मीनिंग्स हैं। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, वो कॉन्फिडेंट है, तो ना तो किसी की बात को डिसमिस कर रही है, ना ही सबमिट कर रही है। कॉन्फिडेंट है कि वो मैं क्या बोल रही है, लेट मी पुट हियर मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बी, है ना। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, द टोन ऑफ द राइटर हियर सीम्स टू कॉन्फिडेंट, हेजिटेंट, सबमिसिव और डिसमिसिव। अब यहाँ पर वो क्या बोल रही है कि ऑन द सरफेस यानी ऊपर से देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ एक दोस्त के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोली ना, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, यानी कि जो लोग हैं वो ये सोचते होंगे कि मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन सच बात ये नहीं है। दैट मीन्स टू से शी इज नॉट एक्सेप्टिंग द ओपिनियन ऑफ द पीपल, she is not in the favor of the opinion in the people what people think, that is actually not true. Okay, so we can say here the tone is dismissive. I was plunked down on the table as a birthday present. The tone of the writer here seems confident, hesitant, humorous, passive. तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि वो बोलते ना कि मेरी सिस्टर मुझे बहुत मिस कर रही थी, तो क्या हुआ कि बर्थडे वाले दिन मुझे उठा करके टेबल पर ऐसे रख दिया गया जैसे कि कोई मैं बर्थडे की प्रेजेंट हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या कैसी टोन है, ह्यूमरस है। लोगों को लाइन पढ़ने से हंसी आती है ना, कि मुझे उठा करके ऐसे मेरी बहन के सामने रख दिया जैसे कि मैं कोई उनकी गिफ्ट हूँ। सो द टोन हियर इज ह्यूमरस वन. The lines or expressions where we can find humorous tone in the extract. Okay, so students, this is actually a special question that actually I have written roughly over here. यहाँ पर इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखो सारी लाइन जो है ना ह्यूमरस टोन को शो करती हैं। ओके, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इन लाइन्स में कहीं पर भी कैसे करके घुमा करके पूछते हैं कि कैसी टोन है, तो ये सारे जो टोन है ह्यूमरस हैं, ध्यान से रखिए, इसको समझिएगा। ठीक है, द स्टिफ्ट बेक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड एज अ डायरी, तो डायरी को जब वो इंट्रोड्यूस करवा रही है तो कैसे बोल रही है, द स्टिफ्ट बेक्ड नोटबुक, प्लंज राइट इन, I was plunked down on the table, quacking in its boots. Dummies for unintelligent student. Unintelligent student को कैसे बोल रही है, dummies. Teachers are the most unpredictable creatures of the earth. ओल्ड फॉगी, ओल्ड फॉगी किसको बोलती थी, वो अपने मैथ्स टीचर को बोलती थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रही है, टीचर्स का तो कुछ पता ही नहीं लगता है, वो दे आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑफ द अर्थ। चैटर बॉक्स, क्वेक, तो ये सारे जो ऑप्शन है हमारे